Hi everyone, welcome to this class. What are you doing? Are you crazy? Then are you interested to talk to me? This question, student, I asked to you. So you thought that because of these questions related on today's topic. So what is the name of today's topic? Interrogative sentences. So my dear student, you have to open the page number of English grammar book of page number 14 and lesson number 5. So now first of all I would like to tell you the definition of interrogative sentences. Interrogative sentences are those that ask questions and have a questions mark at the end. So now my dear student, I write the definition on the board. You also you have to write this definition in your notebook. So write down the definition of interrogative sentences. Interrogative sentences are those that ask questions and have a question mark at the end. So look at here. Interrogative sentences are those that ask questions and have a question mark at the end. So my dear student, let's see the example of the interrogative sentences. Are you playing cricket? Look at here. Are you playing cricket? Then are you going to school? Okay, second example. Then third example is she sick? Okay, look at here. Are you playing cricket? Then second example, are you going to school? And then third example, is she sick? Okay, these are the three examples of interrogative sentences. So my dear student, how can you make the interrogative sentences from statement? Statement से हम interrogative sentences कैसे बना सकते हैं, ये आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है interrogative sentences. ये जो यहाँ जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज दैट आस्क क्वेश्चंस. क्या पूछते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? क्वेश्चंस एंड हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. क्वेश्चंस पूछते हैं और लास्ट में क्या होता है? एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क. ये जो सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो नाउ यू हैव टू सी द मोर एग्जाम्पल ऑफ द स्टेटमेंट देन टर्न इनटू इंट्रोगेटिव sentences. Look at here carefully. Okay, look at here. I am intelligent. I am intelligent. Then he is late. Second example, I am intelligent, he is late. Then third example, you have a pencil. The next example, he has seen your report card. Look at here. There are the four example of statements. ये किसके example है? Statement. Statement means sentence. ये sentence के आपको example दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको अभी हमें कौन से इसमें चेंज करना है, टर्न करना है interrogative sentences में. तो interrogative sentences में when we turn to interrogative sentences, first of all we have to look the verb. So what is the verb in the first example?
It is am. In the first example, am is the verb. Then in the second example, is the verb, and in the third example, have is the verb, and in the fourth example, there are the two verbs. When in the sentence has a two verbs, so we have to put a first verb. यहाँ पर दो verb दिखाई दे रहे हैं, एक has है और एक seen है, और बाकी के जो examples है उसमें am है, for only one verb, second example में only one verb, and third example में भी only one verb. तो इसको हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टर्न करना है. तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट के पहले वर्ब लेना है. जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं यानी क्वेश्चन बनाते हैं, तब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब को क्या करना पड़ता है, यस, बिगिनिंग एट द सेंटेंस. सेंटेंस के पहले हमें यूज़ करना पड़ता है. सेंटेंस के में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब हमें वो वहाँ पर वर्ब यूज़ करना पड़ता है. जैसे सब्जेक्ट, हम यहाँ पर अभी सब्जेक्ट आई है, यहाँ सब्जेक्ट ही है, यहाँ सब्जेक्ट यू है और यहाँ सब्जेक्ट ही है. तो सब्जेक्ट के पहले हमें क्या करना पड़ता है, यस, क्या करना पड़ता है, वर्ब रखना पड़ता है. सो यू शुड पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. सो लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट, am. So what is the verb here, am, and first letter should be in capital. कौन से लेटर में चाहिए, ये कैपिटल लेटर में, क्योंकि सेंटेंस अभी स्टार्ट हो रहा. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें फर्स्ट लेटर क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए. तो am, then after that put the subject, am I intelligent, then remaining word. ओके, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड एट द end of the sentence question mark. So look at here, how can you make the interrogative sentences. Then next example, because of, look at here carefully, am. क्यों लिया है am यहाँ पर पहले हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब को हमें बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर आ है तो हमें सब्जेक्ट के पहले क्या लेना है, वर्ब लेना है. सो am, देन आफ्टर द सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर द रिमेनिंग वर्ड. सो am I intelligent, and at the end of the sentence you put the question mark. सो इसके बाद में आपने क्या रखा, क्वेश्चन मार्क. क्यों रखा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, am I intelligent, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए. सो लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल, ही इज़ लेट. ये स्टेटमेंट है, तो हमें यू कैन टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो लुक एट हियर, सो हमें यहाँ पर क्या लेना है, वर्ब इसका, यस, इज बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लेना है, यस, वर्ब लेना है. तो यहाँ पर हमने वर्ब लिया है इज. ओके, देन व्हाट इज दिस, सब्जेक्ट, देन आफ्टर द सब्जेक्ट इज ही, देन यस, रिमेनिंग सेंटेंस है और रिमेनिंग वर्ड जो भी बचा रहता है इसमें सेंटेंस में, वो आपको उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में लिखना पड़ता है. इज ही लेट, एंड एट द एंड क्वेश्चन mark. So now it is the interrogative sentence. Is he late? Then in the third example you have a pencil. ओके आपके पास पेंसिल है तो हमें क्वेश्चन बनाना है. तो अभी देखो यहाँ पर जो हैव दिखाई दे रहा है आपको वर्ब दिखाई दे रहा है तो ये वर्ब आपको कहाँ लिखना पड़ता है? बिफोर द सब्जेक्ट. वेरी गुड. मीन स्टार्टिंग द सेंटेंस. लुक एट हियर हैव. ओके देन आफ्टर सब्जेक्ट you have you a pencil. Have you a pencil? Then end question mark. Okay, did you understand how can you make the इंट्रोगेटिव सेंटेंस? मिस क्वेश्चन किस तरह से बना रहे हैं आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? वेरी गुड. देन आपको अपने नोटबुक में भी मेंशन करना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है. देन यहाँ पर देखिए लास्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. ही हैज़ सीन योर रिपोर्ट कार्ड. तो आपको अभी इसका क्वेश्चन बनाना है. ये स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं? 2 वर्ब्स. एक तो हैज़ है और अनादर सीन है. 2 वर्ब है. तो आपको जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आते हैं तो आपको सिर्फ एक ही वर्ब का यूज़ करना है. और फर्स्ट वर्ब कौन सा है? हैज़. तो हमें हैज़ बिगिनिंग एट द सेंटेंस. ये सेंटेंस के पहले सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो उसके शुरुआत में हमें फर्स्ट वर्ब यूज़ करना पड़ता है. तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़.
ओके, देन आफ्टर दैट यस ही ना, हमने वर्ब रखा है बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर द सब्जेक्ट, यहाँ पर भी बिफोर द सब्जेक्ट वर्ब रखा है, यहाँ पर भी बिफोर द वर्ब सब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर भी बिफोर द वर्ब सब्जेक्ट रखा है. सो यू शुड कीप द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग sentence you write down. Okay, so has he seen your report card, and then question mark. Has he seen your report card? Okay, इस तरह से ये सेंटेंस आपको बन गया. ओके, हैज़ ही सीन योर रिपोर्ट कार्ड. तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम और भी कुछ एग्जाम्पल देखना चाहेंगे. सो लुक एट हियर, दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट. तो हमें इस स्टेटमेंट्स को अभी क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है. अभी इस एग्जाम्पल में आपको कितने वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्ब्स, विल एंड कम. विल कम ये 2 वर्ब है. तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा कि अगर 2 वर्ब सेंटेंस में आते हैं तो हमें एक ही वर्ब आगे लेना है बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पहले हमें वर्ब लेना है और जो रिमेनिंग वर्ब है वो बाद में लेना है और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो उसके बाद राइट डाउन करना है. तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको अभी करके देखना है. तो बताओ चलो, ही विल कम टुमारो मॉर्निंग, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा. यस, वेरी गुड. विल, then he come tomorrow morning, and at the end yes question mark, put the question mark at the end. will he come tomorrow morning, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज आर टायर्ड. तो इसका हमें अभी क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो लुक एट हियर, व्हाट इज द वर्ब हियर, आर एंड अनदर टायर्ड. तो हमें अभी क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यस वी पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. स्टार्टिंग में हमें ए लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल. सो आर द boys then tired and question mark at the end. Okay, then next example, she was the winner. ये थर्ड एग्जाम्पल है. इसका अभी हमें क्या बनाना है, टर्न इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो लुक एट हियर, व्हाट इज द वर्ब हियर, was. वेरी गुड. सो हमें अभी यहाँ पर क्या लिखा स्टार्टिंग में, यस बिफोर द सब्जेक्ट. यानी सब हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव का, तब हमें क्या लेना पड़ता है, वर्ब पहले लेना पड़ता है. सो was, देन आफ्टर सब्जेक्ट, was she the winner. Okay, and then question mark, then last the train will be late. ये जो है अभी यहाँ पर हमें यहाँ वर्ब दिखाई दे रहा है, तो हमें एक ही वर्ब पहले लेना है. सो विच इज will. वेरी गुड. will the train then be late, then question mark. So these example of the interrogative sentences. So my dear student, आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट यानी समझ में आ चुका होगा. आई होप दैट. सो आपको ये जो पेज नंबर 14 और 15 ये आपको स्टडी करना है, वर्कबुक फिलअप करना है ग्रामर का, और नेक्स्ट टाइम में हम अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.